تیری حرمت پہ ہو میری جان گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے محترم بھائیوں ایک موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بڑا چانس دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس انداز کے ساتھ رمضان گزار تاکہ تو اپنے رب کو راضی کر لے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ سچی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ اس آنے والے رمضان کے اندر اللہ ہمیں بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات، یعنی اللہ کی عبادات سے ایک بات کا تعلق ہے، اور دوسری جو انسان کی عادات ہے یعنی حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کما آپ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو دو بڑی وصیتیں کر کے گئے۔ ان دونوں وصیتوں کے اندر جو پہلا نمبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ہے، اور جو دوسرا نمبر اللہ کے نبی نے بیان کیا وہ انسانوں کے حقوق، بندوں کے حقوق کا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، ملازمین ہیں یا دیگر لوگ جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، جن کی روزی روٹی تمہارے ساتھ اللہ نے وابستہ کر دی ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ میرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا سے جانے والا ہمیں ہمارا پیارا کو وصیت کر جائے، کس قدر ہم خیال کرتے ہیں۔ یہ میرے والد کی وصیت ہے، یہ میری والدہ محترمہ کی وصیت ہے، لیکن یہ اس عظیم انسان کی وصیت ہے میرے محترم بھائیوں جو اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہمارا خیر خواہ اور سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی نے، اسلام نے، قرآن نے، دین نے ہمیں تلقین کی ہے کہ نماز کو، اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو عادت بنانے کی تلقین کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو اپنی عادت کے اندر ڈھالو، نماز کی پابندی کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر 495 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ جب آپ کی اولاد، آپ کے بچے بیٹے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں نماز کا حکم دو، انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، انہیں نماز کی تلقین کرو۔ اور آگے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب آپ کے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، ان کے اوپر سختی کرو، ان کو مارو، اس لیے تاکہ وہ نماز کے عادی بن جائیں، نماز کے پابند بن جائیں۔ یہ شریعت میرے محترم بھائیوں ہمیں حکم دیتی ہے۔ آج میرے محترم بھائیوں میں اور آپ غور کریں کس قدر ہم اپنی اولاد کی نماز کا، ان کی عبادت کرنے کا کس قدر ہمارے ذہنوں کے اندر فکر ہے۔ بعض اوقات خود آ جاتے ہیں لیکن بچوں کا کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آیا کہ بچوں کو بھی ہم نے مسجد کے اندر لے کر جانا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تلقین کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر مارو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، سختی کرو کہ وہ مسجد کے اندر آئیں، نماز کے عادی اور نماز کے پابند بنیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اس لیے ہے تاکہ بچپن سے ہی ایک مسلمان کے بچے کے ذہن کے اندر
دل و دماغ کے اندر نماز کی پابندی اور اہمیت واضح ہو جائے اور وہ نمازی بن جائے۔ شریعت دیکھنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا 10 سال کا بچہ 5 وقت کا با جماعت نمازی ہو، یہ درکار ہے قرآن کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے، میرے نبی کی مسجد ہے، میرے نبی کی امامت ہے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے سب سے پہلے جو صفیں ہوتی تھی مردوں کی ہوتی تھی، مردوں کی صفوں کے بعد بچوں کی صفیں ہوتی تھی، اور بچوں کی صفوں کے بعد خواتین کی صفیں ہوتی تھی۔ یہ مسجد نبوی کا ماحول ہے کہ مردوں کے بعد بچوں کی صفیں ہوا کرتی تھی مسجد کے اندر، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کروا رہے ہوتے، مائیں اپنے بچے ساتھ لایا کرتی تھی۔ کسی بچے کی رونے کی آواز آتی، میرے نبی بعد میں اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بچہ مسجد کے اندر لے کر نہیں آنا، بلکہ میرے نبی نماز کے اندر ہوتے، اس ماں کی بے چینی ختم کرنے کے لیے نماز کو جلدی ختم کر دیتے، نماز جلدی پڑھ لیتے تاکہ اس ماں کو سکون آ جائے اس کا بچہ رو رہا۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ بچوں کو مسجد کے اندر نہ لے کر آئیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا معاشرہ اگر بچے مسجد کے اندر آ جائیں تو کس قدر نمازیوں کو فکر پڑ جاتی ہے، کس قدر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ بچے مسجد کے اندر کیوں آئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ٹھیک ہے جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن جو 7 سال کے ہو چکے ہیں، 6 سال کے ہو چکے ہیں، 8 سال کے ہو چکے ہیں، حق بنتا ہے والدین کا کہ ان کو ساتھ مسجد کے اندر لے کر آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نبوی معاشرے کے اندر بچوں کا مسجد کے ساتھ دل لگانا میرے نبی کی بھی سنت ہے اور اصحاب رسول کی بھی سنت ہے۔ بچوں کا مسجد کی طرف رجحان بڑھانا میرے محترم بھائیوں، اس کی میرے نبی نے بھی اس کو اہمیت دی ہے اور اصحاب رسول نے بھی اس کو اہمیت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر شعور اور فکر پیدا کرتی ہے، اویئرنیس دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، جو نماز کا پابند ہے اس انسان کی طہارت اور جو بے نماز ہے اس انسان کی طہارت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ پاکیزہ انسان ہوتا ہے، اس کی طہارت کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ انسان کو نماز شعور دیتی ہے کہ تیرا کوئی خالق اور مالک ہے، ہم بے مالک نہیں ہیں، ہمیں کوئی ایسا نہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا، بلکہ ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور اس نے سوال کرنے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس کے بے شمار فوائد ہیں نماز کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ فحاشی اور ریانی کا دور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فحاشی اور ریانی کے کاموں سے بچے، لا دینی اور بے دینی کاموں سے بچے، تو میرے محترم بھائیوں اس کا بہترین حل ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، ان کو مسجد کے اندر لے کر آئیں۔ جب وہ مسجد کے اندر آئیں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بہترین بچانے والا جو عمل ہے وہ نماز کا پابند ہونا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ جو ایک طبقاتی تقسیم ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سارے ایک صف کے اندر ہوتے ہیں، ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر مساوات نظر آتی ہے، اخوت نظر آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ اپنی اس عبادت کی فکر کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ اپنی امت کو تلقین کی ہے تو نماز کی تلقین کی ہے۔ میرے نبی دے محترم صحابہ، میرے محترم بھائیوں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین جماعت اصحاب رسول، ان کا انداز دیکھیے۔ جامع ترمذی کے اندر 2622 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے
सही हदीस है कि मेरे नबी के असहाब का जो दौर है, मेरे नबी के असहाब का मामला क्या था, वो किसको बुरा समझते थे या किसके ऊपर कुफर का फतवा लगाते थे या किसके बारे में कहते थे किसने कुफर किया है। सही हदीस है, काना असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शैयन मिनल अमाली तर्कुहु कुफ्रुन गैर सलाह। मेरे नबी के असहाब उस आदमी के ऊपर कुफर का फतवा लगाते थे, उसके बारे में कहते थे कि इस आदमी ने कुफर किया है। किसने? जो नमाज छोड़ देता था, नमाज नहीं पढ़ता था। मेरे नबी के असहाब, ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह की जमात, ये अल्लाह के ग्रांटेड वली उस इंसान को समझा करते थे कि इस इंसान ने कुफर किया है। मेरे मुख्तरम भाइयों, आज हमारे माशरे में तो ये गुनाह ही कोई नहीं। नमाज ना पढ़ना हम इसको गुनाह समझते ही नहीं, बल्कि अगर कुछ चार आदमी नमाज पढ़ते हैं तो बेनमाजियों को सबसे बुरे वही लगते हैं कि ये मस्जिद के अंदर जाते हैं नमाज पढ़ने। नहीं मेरे मुख्तरम भाइयों, ये बहुत बड़ा अलमिया है। देख ले आज हमारे माशरे के अंदर मेरे मुख्तरम भाइयों, घरों के घर बेनमाज है, खानदानों के खानदान बेनमाज है। काबा के रब की कसम है, सबसे बड़ी नहूसत यही है कि इंसान की फजर भी बिस्तर पे गुजर जाए, इशा भी बिस्तर पे गुजर जाए, ज़ोहर असर मगरिब कामों के अंदर गुजर जाए और वो समझे कि मैंने बड़ा मार का मार लिया है, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। काबा के रब की कसम है, सबसे बड़ा जाहिल और सबसे बड़ा रास्ता भूलने वाला ये बेनमाज इंसान है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, मैं पढ़ रहा था इमाम मालिक और इमाम शाफी का कौल। वो फरमाया करते थे कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसको नमाज की तलकीन करो, साथ उसको धमकी दो कि अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और वो इमाम फरमाते हैं अगर फिर भी नमाज ना पढ़े, धमकी के बगैर यानी धमकी के साथ भी नमाज ना पढ़े, तो वो कहते हैं इस बेनमाज आदमी को कत्ल कर देना चाहिए। मेरे मुख्तरम भाइयों, हम समझते हैं कि कलमा पढ़ लिया या मुसलमानों के घर के अंदर पैदा हो गए लिहाजा हम मुसलमान हैं। मेरे मुख्तरम भाइयों, बहुत बड़ी सुस्ती है, बहुत बड़ी सुस्ती है ये बेनमाज रहना, नमाज का छोड़ना। मेरे मुख्तरम भाइयों, बहुत ज्यादा सुस्ती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मेरे मुख्तरम भाइयों, रमज़ान आ रहा है, इसलिए मैं रमज़ान की तैयारी के हवाले से आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि अल्लाह के लिए इस नमाज को कायम कीजिए, नमाज को पढ़िए जिसका अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल ने पढ़ के दिखलाई है, असहाबे रसूल ने पढ़ के दिखलाई है। काबा के रब की कसम है, इंसान तू भूला हुआ है, इस दुनिया के अंदर इतना मसरूफ हो गया है और दुनिया की आसाइशों और सहूलियात को इतना मुकद्दम रखता है शायद कि ये हमेशा तेरे पास रहेगी। नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, दुनिया का एक टका भी तेरे साथ नहीं जाएगा, एक रुपया भी तेरे पास नहीं जाएगा, दुनिया की कोई चीज तेरा साथ नहीं देगी। साथ देगी तो इंशाल्लाह ये नमाज साथ देगी। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कब्र के अंदर भी काम आएगी तो ये नमाज काम आएगी जहां कोई भी नहीं हो। तो मेरे मुख्तरम भाइयों, किस सुस्ती के अंदर है, किस गफलत की जिंदगी के अंदर रह रहे हैं कि कहते हैं कोई बात नहीं, नमाज छूट जाए कोई जुर्म नहीं, कोई मसला ही नहीं। फिक्र नहीं हुआ कभी, बच्चा एक दिन स्कूल ना जाए माँ भी रोती है, बाप भी उसको मारता है, कितनी फीस दी हुई है, बच्चे ने छुट्टी कर ली है, छोटा सा बच्चा होता है उसको गाड़ी के अंदर ठोंस दिया जाता है कि ये स्कूल जाए ताकि इसको अंग्रेजी आ जाए, इसको इंग्लिश आ जाए। काबा के रब की कसम है, कभी ना माँ ने फिक्र की है ना कभी बाप ने फिक्र की है कि जिस बच्चे को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इसको नमाज का कहो, ना नबी की परवाह है और ना अल्लाह की परवाह है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, इससे बड़ी सुस्ती क्या है? हम इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी आ जाए, इंग्लिश आ जाए, वो दुनिया के अंदर शोहरत पा जाए। काबा के रब की कसम है, जब अल्लाह के सामने जाएंगे यही औलाद ना करे, अल्लाह ना करे, जहन्नम रसीद हो जाए तो क्या माँ बाप को चैन आ जाए? क्या माँ बाप को जन्नत के अंदर सुकून मिल जाएगा कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे जिनको हमने PhD इंग्लिश करवाई थी वो जहन्नम रसीद हो रहे हैं, बेनमाज होने की वजह से जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं? मेरे मुहतरम भाइयों, फिर
इंसान देखे, गौर करे, मुहासबा करे, उस वक्त बेचैनी और बेकरारी का आलम क्या होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मेरे मुख्तरम भाइयों, ये रमज़ान, अल्लाह करे इस रमज़ान के अंदर हम 30 दिन बाद जमात नमाज पढ़े, नमाज के आदी बन जाए, तो बहुत बड़ा अल्लाह ने इनाम और इकराम हमें दे दिया है। अगर इस रमज़ान के अंदर हम नमाजी बन गए और पक्के नमाजी बन गए, मेरे मुख्तरम भाइयों, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो अल्लाह के लिए मेरे मुख्तरम भाइयों, आज से तैयारी करें, आज से ये ज़हन में बिठाएं कि हम इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। आज से ही नमाज शुरू करते हैं। मेरे मुख्तरम भाइयों, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, सबसे बड़ी मता, सबसे बड़ी दौलत ये नमाज है, जिसको नसीब हो जाए। इसी तरह मेरे मुख्तरम भाइयों, जो नमाज पढ़ते हैं उनसे भी गुजारिश है कि इसके अंदर खुशू व खुजू लाएं, इसके अंदर बेहतरी लाएं, सुन्नतों का एहतमाम करें। मेरे मुख्तरम भाइयों, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि सुन्नतों के चोर नमाजी बन रहे हैं कि सुनते छूट जाती है। नहीं मेरे मुख्तरम भाइयों, याद रखिए, जब सुनते छूटेगी फिर आस्ता आस्ता क्या होगा। तजर्बे की बात है मेरे मुख्तरम भाइयों, मैं ऐसे बंदों को जानता हूं कि नमाज भी छोड़ बैठते हैं, फिर मस्जिद का रास्ता ही भूल जाता है। नहीं मेरे मुख्तरम भाइयों, जो नमाजी होता है वो दिन ब दिन उसके अंदर अच्छाई आती है, उसके अंदर बेहतरी आती है, वो ज्यादा से ज्यादा नवाफिल और सुन्नतों का एहतमाम करता है, वो ज्यादा दिल लगाकर, जी लगाकर नमाज अदा करता है। जिसके अंदर, जिस नमाज के अंदर खुशू व खुजू होगा, वो उसको बेहतर से बेहतर बनाएगा। वो कौन सी नमाज हुई जिसने आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद ही छुड़ा दी, कि सुनते पहले छोड़ी, फिर फर्ज इतनी जल्दी पढ़े, फिर मस्जिद से किनारा कश। नहीं मेरे मुख्तरम भाइयों, ऐसी कोई नमाज नहीं है। नमाज के साथ जो नवाफिल हैं, सुनते हैं, इनको अदा कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर कितनी अल्लाह की रहमत और बरकत शामिल हो गई है। मुतमईन पुरसुकून जिंदगी इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपको नसीब करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मेरे मुख्तरम भाइयों, नमाज तरावी का इंशाअल्लाह एहतमाम है, ये करना चाहिए। मेरे मुख्तरम भाइयों, देखने में यही आता है कि तरावी की जमात हो रही होती है, उस जमात के अंदर ना उलमा नजर आते हैं, ना आइम्मा दीन नजर आते हैं, ना हुफाज नजर आते हैं, ना वो जो मस्जिद बनाने वाले वो नजर आते हैं, चंद लोग वो नमाजी रह जाते हैं। मेरे मुख्तरम भाइयों, बहुत बड़ा अलमिया है कि चंद दिन का ये मेहमान महीना है, अगर इस महीने के अंदर अल्लाह का कुरान सुन लें, क़याम कर लें, अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, अल्लाह माफ कर दे, तो और क्या चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया था कि जिस बंदे ने ईमान के साथ, सवाब के साथ रमजान के अंदर क़याम किया है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। तो मेरे मुख्तरम भाइयों, बड़ा अच्छा मौसम है, कोई थकावट नहीं, कोई गर्मी का मौसम नहीं है। तरावी का एहतमाम ज़रूर करें, कुरान सुने, इंशाअल्लाह ईमान जागेगा, वो रातें नसीब होंगी, अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इसके ऊपर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुख्तरम भाइयों, जो दूसरा मेरी तकरीर का जो दूसरा हिस्सा है, बड़ा ही अहम हिस्सा है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह कमा को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुख्तरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ फरामीन, आपके बड़े खूबसूरत फरामीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कमा को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे फरामीन हैं कि जिन्होंने कूजे में इल्म और हिकमत को बंद कर दिया है। मेरे नबी की हदीस है, तिरमिज़ी के अंदर 1987 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, तू जहां कहीं भी है अल्लाह से डर। यानी तू लोगों के सामने है तो भी अल्लाह से डर, तू तन्हाई में है तो भी अल्लाह से डर। ये ना हो कि लोगों के सामने तो बड़ा नेक बने, लेकिन जब इसको तन्हाई मुयस्सर आए फिर अल्लाह की हदें तोड़े। नहीं मेरे मुख्तरम भाइयों, नहीं, मेरे नबी का फरमान है, तू जहां कहीं भी है अल्लाह से डर के जिंदगी गुजार। और कुरान की आयत है, सूरह अत-तलाक आयत नंबर 2 और 3 है। अल्लाह फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल्लाहु मखरजा, जो बंदा अल्लाह से डर गया, अल्लाह से डर के गुनाहों से बाज आ गया, गुनाह से रुक गया, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसके लिए आसानियां पैदा कर दूंगा, उसके लिए दुनिया की जिंदगी आसान हो जाएगी, उसके तमाम काम आसान हो जाएंगे, उसकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। और आगे अल्लाह फरमाते हैं, वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं वहां से उसको रिज़्क़ दूंगा कि उसके वहम ख्याल के अंदर नहीं होगा। यानी अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारने वाला, तकवे वाली जिंदगी गुजारने वाला, गुनाहों से बच के जिंदगी गुजारने वाला, मेरे मुख्तरम भाइयों, जो
गुनाह से रुक जाएगा, आप गुनाह से रुक जाएंगे, तो इसका सबसे पहला फायदा मेरे मुहतरम भाइयों आपकी औलाद को पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अगर नेकी करेंगे, नेक बन जाएंगे, इसका भी पहला फायदा मेरे मुहतरम भाइयों आपकी औलाद को पहुंचेगा। कुरान पढ़ के देखिए, सूरह अल कहफ पढ़िए, जो हम जुमे के दिन तिलावत करते हैं, इतनी खूबसूरत सूरत है। मेरा दावा है कि जो बाप सूरह अल कहफ को तर्जमे के साथ पढ़ ले, उसके अंदर जुर्रत ही नहीं पैदा होती कि वो कभी गुनाह करे, कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। मेरे मुहतरम भाइयों, इतना फायदा है बाप वालिदैन के नेक होने का, इतना फायदा है कि उसकी औलाद को भी अल्लाह ताला नवाज देता है। सच्ची बात है मेरे मुहतरम भाइयों, ये कोई तकब्बर नहीं या कोई बड़ाई नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम है। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, इसके पीछे मेरे वालिदैन की कोई नेकी है, कोई उनकी इबादत, कोई नेकी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, अल्लाह ने कुरान और सुन्नत सुनाने का मौका दिया है। मेरे मुहतरम भाइयों, इसी तरह आप भी देखें, आप मस्जिद के अंदर बैठे हैं, कई तरह के आपके ऊपर इनाम और इकराम है अल्लाह की तरफ से, तो इसकी वजह मेरे मुहतरम भाइयों आपके वालिदैन हैं, उनकी कोई नेकी है। अल्लाह नस्लों तक नेकी का फायदा पहुंचाते रहते हैं। हम जानते हैं बड़ा खूबसूरत वाक़या है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खज़र अलैहिस्सलाम जा रहे थे, बस्ती में गुजरे, बस्ती वालों से खाने का मुतालबा किया, उन्होंने खाना ना दिया। उसी बस्ती में एक दीवार गिर रही थी, जनाब खज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा आओ, हम इसकी दीवार ठीक करते हैं, मेरे साथ लगो। मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा तकल्लुफ़ किया कि ये वही बस्ती वाले हैं जिन्होंने हमें खाना नहीं दिया, हमें पूछा नहीं है, हम इनकी दीवार ठीक क्यों करें। अलगर्ज़ वो दीवार ठीक कर दी गई। अल्लाह ताला का कुरान क्या कहता है, वो दीवार किनकी थी? अम्मल जिदारु फकान लि गुलामैन यतीमैन, मेरा अल्लाह फरमाता है वो दीवार दो यतीम बच्चों की थी। उस दीवार के अंदर खजाना था और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इस दीवार को ठीक कर दो। मेरे मुहतरम भाइयों, वजह क्या थी? कुरान पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी किस कदर नेकी का फायदा औलाद को होता है। अल्लाह फरमाते हैं काना अबूहुमा सालिहा, इन बच्चों के वालिदैन नेक थे, इन बच्चों के वालिदैन नेक थे। अल्लाह ने वो दीवार कायम कर दी, उसके अंदर खजाना महफूज हो गया, ताकि जब ये बच्चे बालग हों अल्लाह इनको ये खजाना अता करे। मालूम हुआ मेरे मुहतरम भाइयों, अगर नेकी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, गुनाह से बच के जिंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह इसका फायदा हमें नहीं बल्कि हमारी औलाद को भी पहुंचेगा। तो इस ज़िमन में मेरे मुहतरम भाइयों, मैं आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम की चंद हदीस, सिर्फ 5 मिनट टाइम में 5-6 मिनट के अंदर बात खत्म करते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है सही बुखारी के अंदर, 6018 और 6019 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी बड़ी खूबसूरत बातें बयान फरमा रहे हैं, सुनने वाली है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो बंदा अल्लाह के ऊपर और आखिरत के ऊपर यकीन रखता है, मेरे नबी फरमाते हैं फला युज़ी जारहू, वो अपने हमसाये को तकलीफ ना दे, वो अपने हमसाये को तकलीफ ना दे। और एक हदीस के अल्फाज है फल युकरिम जारहू, वो अपने हमसाये का इकराम करे, उसका ख्याल करे, उसको तकलीफ ना दे। ये किसको कहा जा रहा है? जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है। मेरे मुहतरम भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमसाये को तंग करना, उसको तकलीफ देना, उसका नुकसान करना और उसके नुकसान के अंदर मजीद अजाफा करना और ख्वाहिश रखना कि मेरा हमसाया तंग हो, ये तकलीफ के अंदर हो, ये नुकसान के अंदर जाए। काबा के रब की कसम बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे नबी फरमाते हैं सही बुखारी के अंदर 6016 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। मेरे नबी ने 3 दफा फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। मेरे नबी फरमा रहे मुझे अल्लाह की कसम है, मैं मोहम्मद कहता हूँ वो बंदा मोमिन नहीं है। 3 दफा अल्लाह के नबी ने कसम उठाई, 3 दफा कि वो बंदा मोमिन नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिनकी जुबान से निकलने वाला एक हरफ सच्चा सुच्चा है, जिनकी जुबान की गारंटी मेरा अल्लाह देता है, वो कह रहे हैं कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ वो बंदा मोमिन नहीं है। सहाबा ने सवाल किया कौन? कहा अल्लाज़ी ला यामनु जारुहु बवाइकहु, जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं कसम उठा के कहता हूँ वो बंदा मोमिन नहीं है। मेरे मुहतरम भाइयों, आज देखें कितने गिले शिकवे हैं हमसायों के साथ, कितनी तकलीफें हैं हमसायों को।
मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अल्लाह को मानने वाले हो, आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले हो, तो अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूँ, सबसे बड़ी खैर खाई यही है कि इंसान अपने हमसाये के साथ खैर खाई करे। तो मेरे मुहतरम भाइयों, पहली हदीस ये है। और दूसरी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। फरमाया जो अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। मेहमान आ जाए घर के अंदर, गांव के अंदर मेहमान आ जाए, मस्जिद के अंदर मेहमान आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, उसकी इज्जत करे। ये ना हो कि मेहमान आया और इसका मुंह बिगड़ गया, इसको परेशानी लाक होगी कि ये मेहमान आ गया है, इसको खाना देना पड़ेगा, पीना देना पड़ेगा। नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका हक है, वो तुम्हारे घर में आ गया है, उसकी इज्जत कीजिए। ये मेरे नबी का हुक्म है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी दो बातें अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। फरमाया जो अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान रखता है उसको चाहिए कि जब बात करे तो अच्छी करे, वगरना खामोश हो जाए। आज मेरे मुहतरम भाइयों, ये भी फितना है। इतना इंसान बड़बोला बन गया है, इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है, काबा के रब की कसम है, जो ज्यादा बोलने वाला है सबसे ज्यादा उसकी नुकसान उसकी बसीरत का होता है, उसकी अकल का नुकसान होता है। इसलिए मेरे मुहतरम भाइयों, कोशिश करें, अच्छी बात करें, जिस बात से खुशबू आए, जिस बात से लोगों को फायदा पहुंचे। सड़ी हुई जली हुई ऐसी बात ना करें कि जिससे अगले का दिल ही बेजार हो जाए। अच्छी बात करें। कोई आपको नसीहत करता है, कुछ समझाता है, कोई आपकी खैर खाई करता है, कोई जैसी भी बात करता है, जवाबन मेरे मुहतरम भाइयों अच्छी बात करे, वगरना खामोश हो जाए, बहुत बड़ा इसका इंशाअल्लाह फायदा हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अंदर 3818 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन वजदा फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। फरमाया एक आदमी वो होगा जिसका नामा अमाल खुलेगा तो सारा नामा अमाल फजूल बातों से भरा होगा। कहीं गिला हो रहा है, कहीं गीबत हो रहा है, कहीं चुगली हो रही, कहीं झूठ ही झूठ है, फजूल बातें मेरे मुहतरम भाइयों अक्सर हम ज्यादा करते हैं। और फरमाया उस आदमी के लिए खुशखबरी है जिसका नामा अमाल खुले तो हर सफे के ऊपर इस्तिगफार नजर आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह नजर आ रहा है, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। ये कलमात बार बार लिखे हुए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं मोहम्मद इसको जन्नत की खुशखबरी देता हूँ जिसका नामा अमाल में ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार हो। तो मेरे मुहतरम भाइयों, फजूल बातों से क्या मिलेगा? बेहतर है कि फारग बैठे हैं, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये कलिमात पढ़ते रहे। इतने जबरदस्त ये कलिमात है कि समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो, मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह इंशाअल्लाह माफ कर देगा। तो फजूल बातें कर करके मेरे मुहतरम भाइयों हम अपना ही नामा अमाल खराब करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात मेरे मुहतरम भाइयों बड़ी सुनने वाली है। इसी हदीस के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु। कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के ऊपर ईमान रखता है उसको चाहिए कि जो माँ जाए, उसके भाई और बहनें हैं, उनके साथ अच्छा सलूक। ये मेरे नबी का हुक्म है कि जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारे अजीज़ो अकारब हैं, तुम्हारे खानदान के अफराद हैं, मेरे नबी फरमाते हैं जो अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान रखता है उसको चाहिए कि उनके साथ अच्छा सलूक करे। मेरे मुहतरम भाइयों, आज सबसे ज्यादा शिकवे अपनों से हैं। भाई भाई से नहीं बोलते, कतरा के गुजर जाते हैं, देखते हैं आगे भाई आ रहा है वो रास्ता ही बदल जाते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, ईमान किस चीज का है? कौन सा दावा है? वो कौन सी मोहब्बत रसूल है? कौन सी मोहब्बत जो अल्लाह के साथ हम करते हैं? वो कौन सी मोहब्बत है जो कुरान और रसूल के साथ करते हैं कि सामने सगा भाई आ रहा है, मैं उसको देखना गवारा नहीं करता, मैं उसके घर में जाना गवारा नहीं करता। मेरे मुहतरम भाइयों, मैं और आप अपना मुहासबा करें, फिर वो हमारा ईमान जो कुरान के ऊपर है, जो अहादीस के ऊपर है, जो अल्लाह उसके रसूल की बातों के ऊपर है, उस ईमान को फिर हम बेफायदा समझें। मेरे मुहतरम भाइयों, याद रखिए, जो बंदा मुत्तकी होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, वो कभी भी माँ जायों के साथ बदसलूकी नहीं करेगा, हमेशा उनके साथ नरमी करेगा। उनकी ज्यादती बर्दाश्त, और मेरे मुहतरम भाइयों क्या हो जाएगा?
اگر دوسرا زیادتی کر رہا ہے، آپ جواباً زیادتی نہیں کر رہے، نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا نقصان ہو جائے گا؟ بلکہ آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اکرام اور عزت کے اندر اتنا آپ کو نوازے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری رضا کی خاطر دنیا کے اندر فتنہ نہیں کھڑا کیا، کوئی انتشار نہیں کھڑا کیا، بلکہ برداشت کرتا رہا ہے، سہتا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرا اللہ اس کی قدر کرے گا، اور یاد رکھیے اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو نوازے گا۔ یہ کوئی قرآن یا حدیث کو ضائع ہونے والی کتابیں نہیں، یا کوئی یہ بیکار، اللہ معاف فرمائے، اللہ اس آدمی کو دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، سکون اور آرام کی زندگی دے گا جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے میرے محترم بھائیوں یہ حکم دیا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا قیمتی مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اکرام کریں اور دنیا کی لذت چھوڑ کر اللہ کی طرف سے ملنے والی لذت، رسول اللہ کی طرف سے ملنے والی لذت، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل یہ ہے، باقی دنیا جتنا بھی آپ گزار لیں، جتنا رہ رہے، جتنی باتیں کر لیں، فضول ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن نماز کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک منٹ بھی اگر انشاءاللہ آپ ٹائم دیں گے تو یہ ضائع اور بیکار جانے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ جو حقوق العباد ہیں، اللہ ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔